بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجید وسطامی اور سمعان کا بت خانہ۔ حضرت باجید علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خلوت میں خود اپنے فکر میں مستغرق اور ذکر میں مانوس تھا کہ مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے واجید سمعان کے بت خانے میں جاؤ اور ان کی عید میں لباس رہبان پہن کر حاضر ہو کر شامل ہو جاؤ۔ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس خیال سے۔ پھر جب رات ہوئی تو حاتب نے میرے خواب میں اسی بات کا پھر اعادہ کیا۔ تب میں اس جواب کے حاتب سے مرعوب ہو کر خواب سے فوراً خوفزدہ ہو کر چونک پڑا۔ اس کے بعد پھر مجھے ظاہری طور پر آواز آئی کہ اے واجید تجھ پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اس سے مت ڈر، تو میرے نزدیک اولیاء اور اخیار میں سے ہے۔ تو ریبان کا لباس پہن لے اور گلے میں جینات ڈال لے اور تجھ پر کوئی گناہ نہیں، اس سے انکار مت کر۔ واجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تب میں جلدی سے اٹھا اور حکم کی تعمیل کی اور ریبان کا لباس پہنا اور سمعان کے بت خانے میں جا کر ان میں شامل ہو گیا۔ پھر جس وقت ان کا بڑا ریبان حاضر ہوا وہ سب جمع ہوئے تو اس کی بات سننے کے لیے چپ ہو گئے، مگر یہ بڑا ریبان بول نہیں سکتا تھا، گویا منہ میں لگام دے دی گئی ہے۔ تب دوسرے رہبانوں نے کہا کہ اے ریبان یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ گفتگو نہیں کرتے تاکہ تمہاری بات سے ہدایت پا کر تیرے علم کی پیروی کریں۔ ریبان نے کہا کہ مجھے کسی شخص نے گفتگو کرنے سے نہیں روکا کہ میں بات نہ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص محمدی تمہارے میں بیٹھا ہے اور وہ تمہارے دین کے امتحان لینے کو آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں دکھلائیے وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اسی وقت قتل کر ڈالیں۔ ریبان نے کہا کہ نہیں، اسے قتل مت کرو، لیکن دلیل اور حجت سے اسے مارو۔ انہوں نے کہا کہ جیسا آپ چاہیں ویسا کریں۔ حضرت واجید فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا ریبان کھڑا ہوا اور آواز دی اے شخص محمدی، تم کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تب واجید اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زبان سے تقدیس اور تمہیدی الہی جاری تھی۔ تب ریبان نے کہا کہ اے محمدی میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے جواب آپ نے دے دیے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے، اگر تم جواب دینے سے عاجز ہو گئے تو ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے فرمایا منظور ہے، قول و منقول سے جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ چنانچہ رہبان نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگا بتاؤ کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں، وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہیں جن کا چوتھا نہیں، وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں، وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا نہیں، وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں نہیں، وہ سات کیا ہیں جن کے ساتھ آٹھواں نہیں، وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نواں نہیں، وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسواں نہیں، وہ 10 کیا ہیں جو کامل ہیں، 11 کیا ہیں، 12 کیا ہیں، 13 کیا ہیں اور 14 کیا ہیں جو اللہ سے بات کرتی ہے۔ اور بتاؤ کہ ایک قوم نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ایک قوم نے سچ بولا اور وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ اور جاریات جربن کیا ہے، اور حاملات بکرن کیا ہے، اور جاریات یسرن کیا ہے، اور مقسماتی امرن کیا ہے۔ اور بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے کہ بغیر روح کے دم لیتی ہے، اور وہ کب کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے، اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا اور نہ زمین سے نکلا۔ اور بتاؤ وہ چار چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہیں، نہ آدمی، نہ فرشتہ، اور نہ وہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کی سکم سے ہیں۔ اور بتاؤ کہ سب سے اول زمین میں کس نے خون کیا، اور وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا، اور سب سے افضل عورت کون سی ہے، اور سب سے افضل دریا کون سا ہے،
और सबसे अफजल पहाड़ कौन सा है, और सबसे अफजल चारपाया कौन सा है, और सबसे अफजल महीना कौन सा है, और सबसे अफजल कौन सी रात है, और अल्तामिया क्या है, और वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियाँ हैं, और हर टहनी में 30 पत्ते हैं, और हर पत्ते में 5 शगुफे हैं, और 2 इनमें धूप के अंदर हैं, और 3 साये में हैं, और वो क्या चीज़ है जो बैतुल हरम का हज करती है मगर उसमें रूह नहीं और न उस पर हर्ज फर्ज है। और बताओ कि कितने अल्लाह ताला ने पैदा किए और कितने मुरसिल हैं और कितने गैर मुरसिल हैं, और वो 4 चीज़ें क्या हैं जिनका मज़ा और रंग मुख्तलिफ है लेकिन उनकी असल क्या है। और बताओ कि फ़कीर और फ़तील और कतमीर क्या है, और शब्द और लब्द और तम और रम और क्या है। और बताओ जब कुत्ता भौंकता है तो क्या कहता है, और गधा हींकता है तो क्या कहता है, और बैल बोलता है तो क्या कहता है, और घोड़ा जब हिनहिनाता है तो क्या कहता है, और ऊँट जब बोलता है तो क्या कहता है, और मोर जब बोलता है तो क्या कहता है, और तीतर अपनी आवाज़ में क्या कहता है, और बुलबुल अपनी आवाज़ में क्या कहती है, और मेंढक अपनी आवाज़ तस्बीह में क्या कहता है, शंख जब बजता है तो क्या कहता है। और बताओ वो कौन सी कौम है जिस पर अल्लाह ने वही की, ना वो जिनों में है ना आदमियों में से और ना फरिश्तों में। और बताओ रात कहाँ जाती है जब दिन निकलता है, और जब रात हो जाती है तो दिन कहाँ चला जाता है। जब रहबान ये सवालात कर चुका तो हजरत वाजिद ने पूछा कोई और सवाल बाकी है। रहबान ने जवाब दिया नहीं। तब हजरत ने फरमाया कि अगर मैंने जवाबात इन सवालों के दे दिए तो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे। तब सबने इकरार करके कहा कि हम ईमान ले आएंगे। बस हजरत वाजिद ने फरमाया कि अल्लाह तू गवाह है इस बात का जो कुछ ये लोग कहते हैं। लो सुनो अपने सवालों के जवाब। जो सवाल किए तुमने कि वो एक क्या है जिस जैसा दूसरा नहीं, बस वो अल्लाह ताला अज़्ज़ोजल है। और जो 2 हैं तीसरा उनके साथ नहीं, वो रात और दिन हैं। और जो 3 हैं चौथा उनके सानी वो अर्श है, कुर्सी और कलम है। और 4 हैं पांचवा उनके साथ नहीं, वो 4 किताबें हैं, तौरात और जुबैर और इंजील और कुरान। और जो 5वां है छठा उनके साथ नहीं, वो 5 फर्ज हैं। नमाज 5 वक्ता जो तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर फ़र्ज है। और जो 6 हैं 7वां उनके साथ नहीं, वो 6 दिन हैं। और जो 7 हैं 8वां उनके साथ नहीं, वो 7 आसमान हैं। और जो 8 हैं 9वां उनके साथ नहीं, वो अरसे अजीम हैं। और जो 7 हैं 8वां उनके साथ नहीं, वो 7 आसमान हैं। और जो 8 हैं 9वां उनके साथ नहीं, वो अरसे अजीम के उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं। और जो 9 हैं 10वां उनके साथ नहीं, वो 9 आदमियों का गिरोह है जिन्होंने ज़मीन पर फसाद किया था। और जो 10 कामिला का सवाल है वो 10 फ़राइज़ हैं जो मक्के में हाजियों पर वाजिब हैं जबकि वो हरम में हों। और जो 11 हैं वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं। और जो 12 हैं महीने साल के। और जो 13 हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब हैं। और जो तुम्हारा सवाल है कि वो कौन है जिसने झूठ बोला और बाहिस्त में दाखिल हुई, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। और वो कौम जिसने सच बोला दोजख में डाली गई, वो यहूद और नसारा हैं। और जारियाती जरबन 4 हवाएं हैं। और हमिलारती बरन बादल हैं। और जारियाती युसरन वो दरिया में चलने वाली कश्तियां हैं। मुक़सिमाती अमरन वो फरिश्ते हैं जो निस्फ सब शैबान को लोगों पर रिज़्क़ तकसीम करते हैं। और जो 14 चीज़ें खुदा के साथ कलाम करती हैं, वो 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं। और वो कब्र जो अपने कब्र वाले को लिए फिरती थी, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। और ये सवाल कि अल्लाह ने कितने नबी पैदा किए और कितने मुरसिल और कितने गैर मुरसिल, सो अल्लाह ताला ने 1,00,000 नबी पैदा किए। इनमें से 313 मुरसिल। और वो चीज़ जो बगैर रूह के सांस लेती है वो शुबह है। और वो पानी जो ना आसमान से है और ना ज़मीन से निकला, वो सीसा है जिसमें बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास घोड़े का पसीना भेजा था। वो 4 चीज़ें जो न जिन हैं, न आदमी, न फरिश्ता, न बाप की पुस्त से और न माँ की सिकम से हैं। वो 4 ये हैं कि एक उनमें दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, दूसरी ऊँटनी सालेह अलैहिस्सलाम की, तीसरी आदम अलैहिस्सलाम, चौथी माई हब्बा हैं। और ये सवाल कि वो क्या चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर उससे कराहत की, वो गधे की आवाज़ है। सबसे पहले कत्ल या खून ज़मीन पर किसने किया, वो खून है।
जो काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया, और ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसको अजीम फरमाया, वो औरतों का मकर है। और ये सवाल कि औरतों में अफजल कौन है, सो वो ये हैं जो उम्मुल बशर हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत आसिया, हजरत मरियम बिनते इमरान रंजी अल्लाह अनहन, और दरियाओं में अफजल सिऊन, जिहून, फिरात, नील, मिस्र, और पहाड़ों में अफजल तूर है, और चार पाँवों में अफजल घोड़ा है, और महीनों में अफजल रमजान है, और अत्तमूतु क़यामत का दिन है। और ये सवाल कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियाँ हैं और हर टहनी के 30 पत्ते और हर पत्ते में 5 शगुफे हैं, और तो उनमें धूप हैं और 3 साये में, सो वो 1 साल है। टहनियाँ उसकी 12 माह और पत्ते उसके हर माह में 30 दिन, और 5 शगुफे, 5 नमाजें 2 दिन के वक्त और 3 रात को। और ये सवाल कि वो क्या चीज़ है जिसने मक्का मौज़ुमा का हज किया और तवाफ किया मगर उसमें रूह नहीं और न उस पर हज फर्ज है, सो वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। और ये कि वो 4 चीज़ें क्या हैं जिनका रंग और मज़ा जुदा जुदा है लेकिन असल एक है, वो दोनों आँखें और वो कान और नाक और मुँह हैं। यानी आँखों का पानी नमकीन और कानों का पानी कड़वा है, और नाक का पानी तुर्स है, और मुंह का पानी सिरी। और असल उनका दिमाग है जो एक है, और नाफीरदा है जो गुटली खुरमा के पुष्ट पर है, और शब्द और लब्द भेड़ों और बकरियों के बाल हैं। और तम और रम वो उम्मतें हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले थीं। और ये सवाल कि गधा जब हींकता है तो क्या कहता है, सो वो शैतान को देखकर कहता है लअन्नहुल इसार, और कुत्ता अपने भौंकने में कहता है बैल है, दो जखियों के लिए। और गजब उल जब्बार, और घोड़ा अपने हिनहिनाने में कहता है अल्लाह ताला मेरा मुहाफिज है। और जिस वक्त झूठ फैले और मर्द मर्द के साथ मशगूल हो, ऊँट अपनी आवाज़ में कहता है इस्बिल्लाहु व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और बुलबुल कहती है पाक है अल्लाह जब सुबह हुई और शाम हुई। और मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है सुबहान अल्लाह माबूद फिल बरारी ब गफ्फार, सुबहान अल्लाह हक्कन हक्का उजूर या इब्ना आदम फ़ी हाजिब दुनिया गुरबन ब शर्कुन मा तरा फ़िहा ऐदन यबका। और ये सवाल कि वो कौन कौम है जिसकी तरफ वही की गई, ना वो जिन में, ना आदमी में, ना फरिश्तों में, वो शहद की मक्खी है। और ये सवाल कि रात कहाँ जाती है जब दिन निकलता है, और दिन कहाँ जाता है जब रात होती है, तो वो दोनों अल्लाह ताला के इल्म के गड्ढे में पोशीदा हो जाते हैं। जवाबात ख़त्म हुए। अब हजरत वाजिद वस्तामी अलैहिर्रहमा ने पूछा कि क्या कोई और सवाल बाकी है, तब उन सब ने कहा कि नहीं। जब हजरत ने सवाल किया कि अब तुम बताओ कि मुफ्ता उल जन्नत और मुफ्ता उल समाबात क्या है, यानी बाहिस्त और आसमान की कुंजियाँ क्या हैं। रहबान ने अपने लोगों से कहा कि चुप रहो, बात ना करो। वाजिद अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि तुमने मुझसे बहुत से सवालात किए और मैंने उनके जवाब दिए। अब मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल किया और तुम जवाब नहीं देते, क्या तुम जवाब देने से आजिज हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हम सब जवाब देने से आजिज हैं। फिर वो सब लोग अपने बड़े सरदार रहबान की तरफ मुतवज्जो हुए और कहा कि क्या तुम भी जवाब देने से आजिज हो गए? रहबान ने कहा कि मैं जवाब देने से आजिज नहीं हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि तुम मेरी मफाकत ना करोगे। सबने कहा कि हम बेशक तेरी मफाकत करेंगे, क्योंकि तुम हमारे बड़े सरदार हो। जो कुछ आप कहेंगे हम उसको सुनेंगे और उसकी मफाकत करेंगे। तब रहबान ने कहा कि कुंजी बाहिस्त और आसमानों की मुसलमानों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनते ही सब लोगों की जुबान पर कलमा तैयबा जारी हो गया और उसी वक्त सबके सब दीन इस्लाम पर ईमान ले आए। और बहुत अच्छा हुआ, उनका इस्लाम लाना और खाने से निकल गए और उसे गिरा दिया और अपने जीनार तोड़ डाले और उस बुतखाने को मस्जिद बना दिया। उसी वक्त हजरत वाजिद को इल्हाम हुआ कि तूने हमारे लिए 1 जीनार पहना था, इसलिए हमने तेरे लिए 500 जीनार तुड़वा डाले। रोजुल रिहान शफा 40। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।